Hello friends, myself Dr. Kirti Kulkarni and I am from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College, Jawhar. So friends, I welcome you all for the SYBSc Chemistry Paper 3. Now we are in semester 4 and we have started with the first unit, that is method of separation. Okay. So in our last lecture we have discussed about the overall syllabus of our semester 4 and then we have started with the first unit, that is methods of separation. So friends, we all know that before starting any chemical analysis, it is very important to separate all the components or constituent of the given mixture. आप लोगों को जो सैम्पल दिया हुआ है या फिर मिक्सचर दिया है उसके कंपोनेंट सेपरेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. If you don't do that, then chemical analysis is not possible. So that is the significance of the separation techniques. Okay, so these separation techniques are based upon various things. Okay, so very important thing is that it depends upon nature of your sample given. तो जो सैम्पल आपको दिया हुआ है उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वेदर इट इज़ सॉलिड, लिक्विड, गैस, मिक्सचर ऑफ दैट, उसके ऊपर आपकी सेपरेशन टेक्निक डिपेंड करती है. देन इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एक्यूरेसी और प्रिसीजन यू रिक्वायर्ड वाइल डूइंग द क्वांटिटेटिव एनालिसिस. कौन से क्वांटिटी में कितना एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है इसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सैम्पल. ओके, सो ओवरऑल these three factors will decide which type of method of separation you will select. Okay, so depending upon that there are various separation techniques. तो ये जो separation techniques है ये substance के various property पे depend करते हैं. जैसे कि we have discussed about the first property. So what are the types of separation method based on various property? तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि the first separation method depends upon solubility. So solubility is one of the property or characteristic of solid substance when it get dissolved in liquid or we can say solvent. तो इसके ऊपर तीन separation method depend करते हैं. Very first is precipitation and second one is filtration. So these techniques we have already discussed in our last lecture. सो प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन. जैसे मैंने बताया था कि इन दिस केस द सॉल्यूट इज़ कम्प्लीटली डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज सॉल्यूशन. और उस सॉल्यूशन में व्हेन यू ऐड प्रेसिपिटेटिंग एजेंट देन यू गेट प्रेसिपिटेट. ओके, सो दिस वे दैट प्रेसिपिटेट इज़ सेपरेटेड from the solution when precipitating agents are added. And in final test tube you can say the solvent without your solute, that is again supernet solution or supernet, और जो नीचे बैठ जाता है that is your precipitate. Okay, so this is one of the method depending upon solubility. फिर दूसरी मेथड हम लोगों ने देखी थी that is filtration. In filtration the solid and liquid are actually separated from each other in the solution. आपको जो solution या sample दिया हुआ है उसमें क्या होता है, your solute particles are actually separated from your liquid, that is called as mother liquor. तो आपको सिर्फ फिल्टर पेपर या कोई भी फिल्टरिंग एजेंट यूज करके उसे सेपरेट करना होता है. सो फिल्ट्रेशन इज़ वेरी सिंपल टेक्निक. हियर यू कैन यूज वेरियस टाइप ऑफ फिल्टर पेपर्स. In most of the laboratories the filter paper used are Whatman filter paper, and depending upon their quality they are of three types, that is qualitative, semi qualitative and quantitative type of Whatman filter paper. तो सबसे ज़्यादा हम लोग जो यूज़ करते हैं that is Whatman filter paper number 40 and it is made up of pure cellulose fiber. Okay, so they are useful for quantitative analysis. फिर उसके बाद भी एक पेपर होता है दैट इज़ कॉल्ड एज पेपर नंबर 41. इट इज़ यूज फॉर जिलेटेनियस प्रेसिपिटेट. अगर आपके प्रेसिपिटेट का साइज़, पार्टिकल साइज़ थोड़ा कम है तो आपको 41 नंबर का पेपर यूज़ करना पड़ता है, अदरवाइज दैट सॉलिड विल कम आउट ऑफ द योर पर्टिकुलर फिल्टर पेपर. तो उसके जो साइज़ है पेपर का, जो मेश साइज़ है वो बहुत कम होता है. एंड देन नंबर 42 इज़ यूज फॉर फाइनली डिवाइडेड प्रेसिपिटेट. अगर आपका प्रेसिपिटेट साइज़ बहुत थीन है तो आप लोग 42 नंबर का पेपर यूज़ कर सकते हो. ओके, सो दिस वे
You can see this diagram here. Filtration is shown, that you have to just filter the filtrate from its solid यूजिंग अ फनेल, और फनेल के ऊपर आपको फिल्टर पेपर रख देना है. तो इट कैन बी योर 40, 41 और 42. Synthetic membrane filters are also used in some cases, or you can also use filtering crucible like sintered glass crucible. अगर आपकी प्रेसिपिटेट की साइज़, पार्टिकल साइज़ बहुत ही स्मॉल है तो क्या होगा, कोई भी फिल्टर पेपर आप यूज़ करो, it will come out of that. So therefore in that case you have to use porous material. ओके, तो ग्लास के अंदर एक पोरस मटेरियल का यू कैन से स्टोन फिट किया होता है. इट इज़ कम्प्लीटली ऑफ पोरस मटेरियल, और इस टाइप के थिंग को क्या कहते हैं, सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल. सो वो भी वेरियस ग्रेड्स के होते हैं, जैसे G1, G2, G3, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ योर पार्टिकल. सो दिस वे यू कैन कैरी आउट filtration. Then the third technique which depend upon solubility is crystallization. तो अभी भी हम लोग वही यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर्टी, दैट इज़ solubility. उसके अंदर 3 सेपरेशन टेक्निक्स है, प्रेसिपिटेशन, फिल्ट्रेशन, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन. तो इन क्रिस्टलाइजेशन व्हाट यू हैव टू डू, इट इज़ द केमिकल सेपरेशन टेक्निक इन विच मास ट्रांसफर ऑफ अ सॉल्यूट from the liquid solution to its pure crystalline solid take place. इस डेफिनेशन का सिंपल मीनिंग क्या है कि क्रिस्टलाइन के टाइम, क्रिस्टलाइजेशन के पहले आपका जो लिक्विड है या फिर आपका जो सॉल्यूशन है उसके अंदर ही आपके सॉल्यूट होते हैं, बट इट इज़ इन सोल्यूबल फॉर्म. तो व्हेन आप क्रिस्टलाइजेशन कैरी आउट करते हो तब क्या होता है कि सॉल्यूशन के अंदर का सॉल्यूट एज अ क्रिस्टल सेपरेट होने लगता है. सो इन क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक व्हाट यू हैव टू डू, you have to heat your sample or you have to heat your solution. So you can see the diagram के अंदर आप देख रहे हो there is a petri dish. ओके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चाइना डिश. उस चाइना डिश के अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रखा हुआ है. सो व्हेन यू डिज़ोल्व द कॉपर सल्फेट इन वाटर इट गेट्स कम्प्लीटली डिज़ोल्व. फिर उसके अंदर आप लोगों ने क्या किया हुआ है, उसके नीचे आपने एक बीकर रखा है जिसमें वाटर है. तो आप डायरेक्टली उसको हीट नहीं कर रहे हो, आपका जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग डायरेक्टली हीट नहीं करते, वी आर हीटिंग विद द हेल्प ऑफ अगेन बॉइलिंग वाटर. और फिर उस वाटर को हम लोग बॉईल कर रहे हैं, है ना. सो आफ्टर दैट बॉइलिंग वाटर विल गेट बॉइल, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्टीम और वेपर हमारा जो सॉल्यूशन है इन पेट्री डिश और चाइना डिश इट विल गेट स्लोली बॉइल्ड. एंड आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, उसके अंदर जो सॉल्यूशन है, जो लिक्विड है, जो सॉल्वेंट है, वो इवापोरेट हो जाएगा एंड देन यू विल गेट क्रिस्टल्स. सो इन सेकंड डायग्राम यू कैन सी दैट इन चाइना डिश देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट कंपाउंड. तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि दिस इज़ अ सिंपल एक्सपेरिमेंट यू कैन डू एट होम ऑल्सो. आप लोगों ने कभी किया भी होगा, या फिर हम लोग नेचर में भी देखते हैं कि जो सी का वाटर होता है ना, समुंदर का पानी, उसमें से नमक कैसे निकालते हैं, हाउ द सॉल्ट इज सेपरेटेड, दैट इट इज़ कलेक्टेड इन वेरी लार्ज फील्ड्स, एंड बिकॉज ऑफ सन और बिकॉज ऑफ हीट सारा जो पानी है दैट गेट वेपराइज, और सारा जो नमक है, सॉल्ट है, NaCl है, वो रह जाता है. सो सेम टेक्निक यू कैन डू, यू कैन टेक सम वाटर, ऐड सम सॉल्ट इन दैट, तो वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा. एंड इफ़ यू हीट दैट again what will happen, the water will get evaporized and then you will get the salt. So ये जो salt हम लोगों को मिलेगा that will be in crystalline form, उसके अच्छे से crystals बनेंगे. So हम लोगों को अगर इस तरीके से separation करना है solid का, तो हम लोग ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं. मीन्स व्हाट, समुंदर के पानी में ऑलरेडी देयर इज़ सॉल्ट, है ना. तो वो जो सॉल्ट है उसको हमको सेपरेट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, वी जस्ट हीट इट. तो हम लोग डायरेक्टली नेचर में विद द हेल्प ऑफ सन हीट हम उसको इवापोरेट करते हैं एंड डायरेक्टली वी गेट सॉल्ट. सो दिस इज़ वन ऑफ द सेपरेशन टेक्निक, दैट इज़ क्रिस्टलाइजेशन, विच इज़ बेस्ड अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्युबिलिटी. तो ये जो सारे 3 थे वो सारे किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, सॉल्युबिलिटी के ऊपर. नाउ वी विल सी द सेकंड प्रॉपर्टी.
of substance that is called as gravity, है ना. ग्रेविटी क्या होती है हम सबको पता है. हम लोगों का जो वेट है या किसी भी चीज़ का वेट है अर्थ के ऊपर, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशन मतलब अर्थ हमेशा अपनी तरफ चीज़ों को खींचती रहती है. दैट इज़ कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड बिकॉज ऑफ दैट एवरी सब्सटेंस गेट सम टाइप ऑफ मास और वेट. तो ये जो ग्रेविटी है उसके ऊपर जो मेथड डिपेंड करती है सेपरेशन टेक्निक, दैट इज़ कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगेशन. वो जो मेथड है सेपरेशन उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन. सो व्हाट इज़ दिस टेक्निक? इट इज़ अ टेक्निक इन विच द मिक्सचर ऑफ सॉलिड and liquid or liquid rotated at very high speed. Okay, and what happens because of that speed, the component of the mixture gets separated due to centrifugal force. तो in simple manner we can say कि आपको अगर कोई मिक्सचर दिया है, whether it is of solid and liquid है ना, या फिर liquid and liquid, दोनों थोड़े से मैनर में इमिसिबल होने चाहिए. इफ़ दे आर कम्प्लीटली मिसिबल देन इट इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट टू सेपरेट आउट देम. या फिर अगर आप पूरे सॉलिड ले रहे हो, दोनों सॉलिड, तो भी ये टेक्निक यूज़ नहीं कर सकते. इन दिस टेक्निक यू शुड टेक सॉलिड लिक्विड और लिक्विड लिक्विड टाइप ऑफ मिक्सचर. तो ऐसा मिक्सचर आपको ये जो डायग्राम दिखाया है, ऐसा एक कंटेनर होता है. उस कंटेनर के अंदर देर आर वेरियस टेस्ट ट्यूब. ओके, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, उस टेस्ट ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब. ओके, उस ट्यूब के अंदर आपको अपना मिक्सचर रख देना है. एंड देन यू हैव टू स्टार्ट दैट मशीन सो दैट इट विल रोटेट एट वेरी हाई स्पीड. सो यू कैन सी देयर एट द बॉटम ऑफ द डायग्राम रैपिडली रोटेटिंग मोटर और रोटर. तो ये मशीन जो है, ये कंटेनर जो है, वो ज़ोर ज़ोर से एक ही डायरेक्शन में घूमता है. इट गेट रोटेटेड. सो बिकॉज ऑफ दैट हाई स्पीड रोटेशन व्हाट विल हैपन, बिफोर एंड आफ्टर डायग्राम देखो आप टेस्ट ट्यूब की. इट इज़ अ सेम टेस्ट ट्यूब. पहले क्या था, लिक्विड के अंदर सॉलिड पार्टिकल सस्पेंड हुए हैं, लेकिन इफ़ यू रोटेट इट एट वेरी हाई स्पीड, आफ्टर रोटेशन वो सारे नीचे बैठ जाएंगे. ओके, सो इट इज़ एक्चुअली मैकेनिकल और मशीन सेपरेशन. तो सारा जो आपका जो सॉलिड है इस तरीके से सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द लिक्विड. और सपोज यू टेक टू लिक्विड्स and if they are rotated at very high speed, then also both will get separated from each other. So this way the centrifugation is particularly useful when separation by ordinary filtration is not possible. तो आप लोग देख सकते हो कि it is kind of normal filtration, लेकिन simple filter paper की यूज़ से हम लोग उसको नहीं कर सकते. Then in that case we use centrifugation. तो इन सेपरेटिंग अ हाई विस्कस मिक्सचर और सॉलिड और लिक्विड मिक्सचर यू हैव टू यूज़ दिस टेक्निक. सो सेपरेशन में बी अकम्पनीड विद द मोर रैपिड इन सेंट्रीफ्यूजल ट्यूब्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. तो ये जो ट्यूब्स है वो रोटेट भी करती है और नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसको पुल कर रहा है. बिकॉज ऑफ दैट ऑल द सॉलिड मटेरियल गेट सेपरेटेड. So the degree of separation may be greater since the force available are far higher in magnitude. मतलब आप लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो है ही और रोटेशनल फोर्स भी अप्लाई कर रहे हो. बिकॉज ऑफ दैट यू गेट ईजीली सेपरेशन ऑफ द सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड. सो दीज आर मोस्टली यूज इन बायोकेमिकल एंड बैक्टीरियल टाइप ऑफ रिसर्च. तो जो बैक्टीरिया अपने होते हैं या फिर सेल बायोलॉजी में आपको सेल से कुछ कंपोनेंट सेपरेट करने होते. सो इन दैट केस यू कैनॉट सप्लाई हीट टू दैट मिक्सचर, अदरवाइज इट विल गेट डिस्ट्रॉय. तो उसको सेपरेट कैसे करेंगे, है ना. बैक्टीरिया को भी आप अगर हीट करोगे सेपरेट करने के लिए तो वो मर जाएंगे. सो इन दैट केस यू हैव टू यूज़ दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू सेपरेट द सॉलिड कंपोनेंट फ्रॉम इट्स मदर liquor or we can say liquid component. Okay, so this way centrifugation is based on gravity which is carried out very easily. Okay, then we will see the third technique, and this third technique is based upon the property which is called as volatility. Okay, this is very important property of the substance कि volatility क्या होती है. when you heat any liquid
इट विल गेट इन वेपराइज फॉर्म, है ना। किसी भी लिक्विड को आप हीट करते हो तो वन स्टेज विल कम वेयर इट्स बॉइलिंग पॉइंट विल कम, और बॉइलिंग पॉइंट के बाद वो आपका जो लिक्विड है वो वेपर फेज में चला जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करते हैं टू सेपरेट टू लिक्विड्स फ्रॉम ईच अदर। कैसे यूज़ कर सकते हैं? अगर दो लिक्विड इममिसिबल है, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो रहे, तो हम लोग उनको ईजिली सेपरेट कर सकते हैं, है ना। आप लोग उसको यूज़ ऑफ सेपरेटिंग फनेल करके उसको सेपरेट कर सकते हो। बट सपोज टू लिक्विड्स आर मिसिबल, दोनों लिक्विड एक दूसरे के साथ मिक्स हो चुके कम्प्लीटली, देन हाउ यू विल सेपरेट देम, राइट। तो आपको क्या करना है, इफ़ यू हीट द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, ये जो मिक्सचर आपको दिया हुआ है विच कंटेन मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, उसको आपको स्लोली हीट करना है या फिर बॉईल करना है। व्हाट विल हैपन देन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आएगा मिक्सचर में से, किसी का तो बॉइलिंग पॉइंट पहले आएगा ना, बिकॉज इट इज़ लो, तो उसका वेपर बनना शुरू हो जाएगा। इट विल स्लोली गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। फिर आपको उस वेपर को कलेक्ट करना है और उसको कूल करना है। देन इन अदर साइड यू विल गेट द लिक्विड विच इज़ हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट, ओके। और उस टाइम आपका जो पहले वाला फ्लास्क था जिसको आप हीट कर रहे हो, उसके अंदर का जो लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, वो वैसे के वैसा रहेगा, है ना। सो यू कैन सी हियर द डायग्राम, हियर यू कैन सी व्हाट इज़ द एक्चुअल डिस्टिलेशन, ओके। तो पहले डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर फेज at its boiling point and vapor is condensed back to the liquid on cooling is known as distillation। तो distillation में हम लोग क्या करते हैं, there is mixture of liquids। तो आप लोग भी ये डायग्राम देखो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, there is one round bottom flask। ये जो round bottom flask है उसके अंदर there is mixture of liquids और we can say solvent। तो ये जो लिक्विड है एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली मिसिबल हो चुके हैं, है ना। वेन दे गेट मिक्स विथ ईच अदर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेपरेट देम। फिर हम लोग क्या करेंगे, देखो उसको स्लोली बॉईल करेंगे। उसके ऊपर एक कॉलम रखा हुआ है, जो कॉलम उस वेपर को पास करता है, और उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, देयर इज़ कंडेंसेशन सिस्टम और वी कैन से कंडेंसर। तो उसके ऊपर हम लोगों ने राउंड बॉटम फ्लास्क के ऊपर एक कॉलम लगाया है एंड देन उसके ऊपर देयर इज़ डिस्टिलेशन एडाप्टर। तो जो भी आपका लिक्विड अभी देखो स्लोली बॉईल हो रहा है ना। बॉईल होने के बाद क्या होगा, व्हेन देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ वेपर ऑफ फर्स्ट लिक्विड, दोनों एक साथ नहीं होंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है उसका वेपर पहले फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। देन इट विल कलेक्टेड इन द कॉलम एंड स्लोली इट इज़ सेंड टू द डिस्टिलेशन अडाप्टर। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू हैव टू मेंटेन द टेम्परेचर, देयरफॉर एट द टॉप देयर इज़ थर्मोमीटर। तो विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर यू विल ऑलवेज मेंटेन द टेम्परेचर, क्योंकि अगर ज़्यादा बॉईल हो गया तो दूसरा लिक्विड भी बाहर निकलने लगेगा, है ना, एंड वी डोंट वांट दैट, वी वांट ओनली वन लिक्विड टू गेट सेपरेटेड। फिर वो वेपर जो है वो आगे डिस्टिलेशन एडाप्टर से कहाँ जाने वाला है, इन अ कंडेंसर। कंडेंसर का काम क्या होता है, देयर इज़ अ ट्यूब इनसाइड दैट, और उसके आउटसाइड में कोल्ड वाटर सप्लाई हम लोग रखते हैं। तो वो जो वेपर है उस वेपर के आसपास देयर इज़ रोटेशन ऑफ कोल्ड वाटर, दैट इज़ कंडेंसर। तो अंदर का जो ट्यूब आपको वाइट कलर का दिख रहा है उसमें से ये वेपर अभी पास होगा। डिस्टिलेशन एडाप्टर से जो वेपर जा रहा है दैट विल गेट पास थ्रू कंडेंसर। और कंडेंसर में क्या हो रहा है, उसको इट इज़ गेटिंग कूल्ड, जैसे कि बादल कूल हो जाता है और वहाँ से बारिश होने लगती है, उसी तरीके से इन द कंडेंसर द वेपर गेट कूल्ड एंड स्लोली इट गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बैक। तो आप पिंक कलर का एरो देख सकते हो। तो पहले ग्रीन कलर का लिक्विड था, वो येलो कलर के वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, सीधा एरोज, ओके। एंड फाइनली आफ्टर कूलिंग इट विल अगेन गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो पिंक कलर में आप देख सकते हो। फाइनली इन अ कोनिकल फ्लास्क यू कैन हैव द लिक्विड विच इज़ अगेन collected in that flask
ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज डिस्टिलेट। तो ये डिस्टिलेट यहाँ कलेक्ट होने के बाद क्या होगा, इन द लेफ्ट हैंड साइड you have that second liquid which is having more boiling point, and if the right hand side flask there is liquid which is having low boiling point. तो इस तरीके से जो मिक्सचर था वो सेपरेट हो चुका है. So this way you can separate the mixture of liquid which is having different boiling points, they can get separated out of this technique. Okay, so इस टेक्निक के कौन कौन से टाइप्स है that we will see in our next lecture. Till that, you take care and stay safe. Thank you.